پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان میں جلسے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کل عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو امن و امان کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف مزید بتائیں گے محمد اشفاق۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی جانب سے جلسے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے۔ ڈی سی کو درخواست دی لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، حالانکہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ اب رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، شکریہ۔ ایف بی آر کی جانب سے یونیورسٹی اساتذہ اور محققین کے لیے دی جانے والی 25% ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کا معاملہ وائس چانسلر کمیٹی نے بھی وفاق پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا۔ وائس چانسلر کمیٹی کا 25% ٹیکس چھوٹ کی بحالی کا مطالبہ وفاق پاکستان نے وائس چانسلر کمیٹی کی جانب سے لکھے جانے والے خط کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے یونیورسٹی اساتذہ اور محققین کے لیے دی جانے والی 25% ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کا معاملہ وائس چانسلر کمیٹی نے بھی وفاق پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا ہے۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹیکس ریبیٹ کے معاملے پر جو فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایسوسی ایشن کی جو احتجاجی تحریک تو پہلے ہی جاری تھی، اور اب اس پر جو وائس چانسلر پاکستان بھر کی وائس چانسلر کی کمیٹی ہے اس نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی، اور اس حوالے سے وائس چانسلر کمیٹی نے جو وزیر خزانہ ہے وفاقی ان کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس ریبیٹ پہلے ساتھ کو دیا جا رہا تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، اس کی بحالی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ فوری طور پر جاری کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فقواسا کے مرکزی عہدیداران ہیں جن میں ڈاکٹر امجد مکسی ہے، ڈاکٹر احتشام ہے اور دیگر عہدیداران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو احتجاجی تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اس حوالے سے جو 30 جون کو یوم اسرا بھی منایا جائے گا، اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ جو ہیں وہ اس فیصلے سے خاصے جو ان میں حصہ پایا جاتا ہے، اور یہ فوری طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹیکس ریبیٹ جو ہے وہ بحال کی جائے۔ اور وائس چانسلر کمیٹی کی جانب سے جو خط وفاقی وزیر خزانہ کو لکھا گیا ہے یہ خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر 25% ٹیکس چھوٹ کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کرے تاکہ ملک بھر کے اساتذہ میں پھیلی ہوئی بے چینی کا خاتمہ ہو اور وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جی عاطف آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پنجاب میں 7 سال بعد مستقل ایڈیشنل ڈائریکٹر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد زاہد 3 سال کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہو گئے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی، جو ایڈیشنل ڈی پی آئی کی پوسٹ 2018 سے اضافی چارج سے چلائی جا رہی تھی، اور اب محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جو ریگولر تعیناتی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ محمد زاہد میاں جو اس وقت کنٹرولر امتحانات لاہور بورڈ بھی ہیں ان کو ایڈیشنل ڈی پی آئی کا چارج دے دیا گیا ہے، اور اس وقت زاہد میاں جو ہے وہ گورنمنٹ شالیمار کالج کے ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں۔ ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جو ہے جاری کر دیا گیا اور 3 سال کے لیے یہ تعیناتی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے آئین اور قانون میں خواتین کے حقوق کی حفاظت عنوان کے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ خواتین کے خلاف کیسز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار کا پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا کہنا تھا ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے آئین اور قانون میں خواتین کے حقوق کی حفاظت عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ خواتین کے خلاف کیسز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار کا پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا کہنا تھا ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے آئین اور قانون میں خواتین کے حقوق کی حفاظت عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ خواتین کے خلاف کیسز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار کا پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔
आपको बताएं कि आईजी पंजाब की जानिब से 10 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। शहनशाह अहमद को DSP सदर बहावल नगर तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रहीम यार खान तैनात। शाहिद महमूद को DSP खारिया गुजरात तैनात कर दिया गया है। अदनान बुखारी को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। IG पंजाब की जानिब से 10 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। शहनशाह अहमद को DSP सदर बहावल नगर तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रहीम यार खान तैनात। शाहिद महमूद को DSP खारिया गुजरात तैनात कर दिया गया है, जबकि अदनान बुखारी को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। IG पंजाब की जानिब से 10 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। शहनशाह अहमद को DSP सदर बहावल नगर तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रहीम यार खान तैनात। शाहिद महमूद को DSP खारिया गुजरात तैनात कर दिया गया है। अदनान बुखारी को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। IG पंजाब की जानिब से 10 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानून मजीद सख्त कर दिया गया है। मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों शहरियों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब कार सवार भी सख्ती से ना बच सके, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे दोनों अफराद भी सीट बेल्ट लगाएंगे। कल से सख्ती का आगाज कर दिया जाएगा। शहरियों के लिए मोटरसाइकिल तो कुव्वत खरीद से बाहर हो ही चुकी है, अब बाइक के साथ हेलमेट का इजाफी खर्चा भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक हेलमेट है और मोटरसाइकिल पर दो अफराद सवारी करते हैं तो दोनों के पास हेलमेट होना लाजमी करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर शहरी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डबल सवारी डबल हेलमेट पर अमल दरामद करते हुए लाहौर के ट्रैफिक वार्डन ने 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पर 2500 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। CTO अतर वहीद की जानिब से एक हफ्ते आगाही के बाद बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया। CTO के मुताबिक कोई ट्रैफिक ऑफिसर भी हेलमेट या सीट बेल्ट के बगैर नजर आएगा तो उसे मौके पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। CTO ने कहा, अमल दरामद न करने की सूरत में सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कवानीन पर बेहतरीन अमल करने वाले शहरियों को सर्टिफिकेट भी देंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 6 फरवरी मुकर्रर कर दी है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रुकने पंजाब असम्बली मौलाना रहमतुल्लाह की दरख्वास्त पर गंदे नाले के लिए डायरेक्टिव जारी किया गया। इस प्रोजेक्ट को पंजाब असम्बली ने मंजूर किया। डायरेक्टिव के इजरा में हमजा शहबाज का कोई किरदार नहीं, मफरूजों पर बात नहीं हो सकती। ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, गवाहों को तलब करने की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद वसीम ने दलाइल में कहा कि हमारे पास ऐसा कोई गवाह नहीं जिसे पेश करना है। तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तमाम शवाहिद फाइल के साथ लगे हुए हैं। मुद्दई जुल्फकार अली ने बयान रिकॉर्ड करवाया कि उसने कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि आप क्या कहते हैं, क्या दूसरे गवाहों के बयानात होने चाहिए या नहीं। सरकारी वकील ने कहा, इसमें जो मुतल्लिका MPA थे वो फोत हो चुके, इसमें तमाम गवाह सरकारी हैं। इस केस में बहुत से गवाह गैर मुतल्लिका हैं। मेरे हिसाब से गंदे नाले का रूट सही बना हुआ है। अदालत ने सरकारी वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस पर समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन बाबर के साथ अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद 20 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में एक दर्जे का इजाफा हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 10 खाली असामियों को पूरा करने के लिए 50 नामों पर 6 फरवरी को जुडिशल कमीशन इजलास में गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 34 जबकि खाली असामियों की तादाद 26 हो चुकी है। जस्टिस असद जावेद घराल सीनियरिटी लिस्ट में 16वें से 15वें नंबर पर आ गए। जस्टिस तारिक सलीम शेख 16वें नंबर पर, जबकि जस्टिस जवाद हसन 70वें नंबर पर हैं। जस्टिस मुसम्मल अख्तर शबीर 18वें नंबर पर और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 19वें नंबर पर
आ गए। इसी तरह जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू 20वें, जस्टिस फारूक हैदर 21वें और जस्टिस वहीद खान 22वें नंबर पर पहुंच गए। जस्टिस विसाल हसन सैयद 23वें, जस्टिस आसिम हफीज 24वें और जस्टिस सादिक मोहम्मद खुरम 25वें नंबर पर चले गए। जस्टिस अहमद नदीम अरशद 26वें नंबर पर, जस्टिस तारिक नदीम 27वें और जस्टिस अमजद रफीक 28वें नंबर पर हैं। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा 29वें, जस्टिस अनवार हुसैन 30वें, जस्टिस अली ज़िया बाजवा 31वें और जस्टिस सुल्तान तनवीर 32वें नंबर पर आ गए। जस्टिस रजा कुरैशी 33वें नंबर पर और जस्टिस राहिल कामरान शेख 34वें नंबर पर आ गए। फिलहाल 10 नए जजेस की तकर्रियों के लिए 50 नाम जुडिशल कमीशन को भिजवाए गए हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 6 फरवरी को होगा। जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर वकील बरहम लाहौर बार और हाई कोर्ट बाट ने वाज़ेह कर दिया है कि जजेस के तबादलों को नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो शाहराए दस्तूर पर एहतजाज करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में दीगर जजेस भी स्टैंड लें। हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजिस के तबादलों पर वकला सरापा एहतजाज। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट और सदर लाहौर बार मुबशिर रहमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा उन्हें बाईपास किया गया। अपनी मन मर्जी के जजेस शामिल किए गए हैं। अगर बाकी जजेस ने स्टैंड ना लिया तो इनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। जो इनके 2IC होंगे वही चीफ जस्टिस लग जाएंगे और ये बाकी जो मौजूदा जजेस हैं अगर इन्होंने अपनी तौकीर और इज्जत को बहाल ना किया और अपने स्टैंड ना लिया तो इनकी फिर वक़्त ख़त्म हो जाएगी और मुल्क में एक ऐसा बहरान आएगा कि इंसाफ का नाम सिर्फ अखबार इंसाफ रह जाएगा और उसका कोई हाल नहीं होगा। सदर लाहौर बार मुबशिर रहमान ने कहा कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क में जमहूरियत नहीं हो सकती। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो हम शाहराए दस्तूर पर एहतजाज करेंगे। बार्स पूरे मुल्क में इस इशू पे मुत्तफिक नज़र आ रही हैं कि जजेस की जो ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन है इसको फिल फॉर वापस लिया जाए और अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो फिर इंशाअल्लाह हम शाहराए दस्तूर पे एहतजाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान, साबिक नायब सदर रबिया बाजवा समेत दीगर वकला रहनुमा भी मौजूद थे। चीन के नए साल की आमद के मौके पर ऑरेंज ट्रेन अनारकली स्टेशन पर तकरीब का इनकाद किया गया। अनारकली स्टेशन के सुर्ख रंग से दीदा ज़ेब सजावट की गई है। चीन की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की गई। चीन के नए साल की आमद पर ऑरेंज ट्रेन अनारकली स्टेशन पर पहली बार पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। चाइनीज, पाकिस्तानी और ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुसाफिरों ने शिरकत की। तकरीब में चीन की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की गई। ऑरेंज ट्रेन के स्टाफ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने चाइनीज जुबान में गीत भी गुनगुनाए। CEO ऑरेंज ट्रेन मिस्टर टोंग ने कहा कि चीन के नए साल की आमद पर पाकिस्तानी भाइयों के साथ खुशियाँ मनाना बहुत अच्छा लग रहा है। This is the year of snake, Chinese New Year. So we spent, this is the third time I spent the Chinese New Year in Pakistan. And also I want to create a very happy phenomenon in Lahore, also for ourselves. And we want to share our happiness with all the passengers of Orange Line. तकरीब के शुरका ने इवेंट को यादगार करार देते हुए चाइनीज के लिए नए साल की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हम लोग ये इवेंट करवाते हैं, हर साल न्यू ईयर मनाते हैं अपने पैसेंजर्स के साथ। अलग सा एक हमारे अंदर जज्बा होता है इस चीज़ का कि यार चाइनीज़ यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे ब्रदर्स आए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का अपना दिल करता है कि यार उनके जितने भी इवेंट्स हो उनको हम अपने इवेंट्स की तरह सेलिब्रेट करें। हमारा मेनली पर्पस था कि इस बार हम अपने चाइनीज़ कोलीग्स जो हैं वो हमारी पब्लिक के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ सेलिब्रेट करें अपना न्यू ईयर। तो हमारे लिए बहुत अच्छा इवेंट रहा। तकरीब के अख्ताम पर केक काटा गया और परफॉर्मेंस दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।